आए आए रंग सारी गुलाबी चुंदरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुंदरिया रे, मोहे मारे मोहे मारे मोहे मारे नजरिया सवरिया। नमस्कार, नी हाओ। मैं सुधीर मिट्टू चैती आर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करता हूँ। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं द लेजेंड ऑफ बनारस, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही खूबसूरत झलक, जिसकी शुरुआत बनारस से हुई। संगीत कला और साधना का प्रतीक है बनारस। भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर है बनारस। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक सुनहरा युग है बनारस। बनारस के कबीर चौराहे के आसपास जन्म हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ अनमोल रत्नों का, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, पंडित समता प्रसाद, पंडित राम सहाय, पंडित किशन महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी और विदुषी गिरिजा देवी जी। इन सभी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय बनाया। इसी बनारस घराने के परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर। यानी कि अगर गुरु बनारस में वास करते हो और शिष्य समुद्र के किनारे वास करता हो, तो भी उसके शरीर में गुरु के ही गुण होंगे और वो अपने गुरु से कभी भी अलग नहीं होगा। बनारस घराने की परंपरा को वहां के कलाकारों ने आज भी जिंदा रखा है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गंगा के किनारे, जहां हमारे कलाकारों ने आपके लिए संजोया है राग मारू बिहाग।
神话学、地理学、艺术学和历史学在这里交相辉映，使瓦拉纳西成为印度文化的一大中心。瓦拉纳西不仅以精神信仰闻名于世，并以其音乐传统蜚声世界。这里呢是学习印度古典音乐的中心，也诞生了半古典的民间音乐形式，如拆地、Tumuri、Gayatri 等等。印度许多伟大的艺术家和哲学家也是来自瓦拉纳西的，其中就包括世界著名的纳维香卡。这就是瓦拉纳西的魅力所在，它是一所艺术、文化、精神和古代印度人生活方式的博物馆。它总是给人惊喜，给人启发，令人永远都不会感到失望。 Whenever the word Banaras or Varanasi is mentioned, I think it's such an evocative word. Can't immediately think of another name of a city that when you mention it, so many thoughts and so many feelings immediately burst forth in your mind. The association of the city, the character of the city, quite apart from the history of the city, the fact that it is one of the oldest continuously inhabited cities in the world, but quite apart from that, the association of this city in the Indian mindscape with religion, with culture, with philosophy, with spirituality, with devotion, with pilgrimage, and in a more modern context, with industry, with skills, with arts and crafts, with music, which forms such an important part of the city. This expanse, to my mind, is unmatchable. Music, I think, is probably one of the things that sets Banaras apart from other cities that have similar attributes and characteristics. The ghats on the Ganges provide us with the enduring sounds, images and meanings related to our very existence. In an instant, you experience bonds with the city which are both eternal and liberating at the same time. The city is known for its contributions to India's famed musical traditions, with stalwarts like Pandit Ravi Shankar and Ustad Bismillah Khan hailing from Banaras. It is also known for its rich tradition of arts and crafts. At a more fundamental level, Varanasi encourages us to probe the deeper meanings of life.
अभी अभी आपने सुनी बनारसी चैती की धुन। 16वीं शताब्दी के दरमियान एक नई संगीत शैली का चरण हुआ, जैसे कि होरी, धामर, चतुरंगा, असावरी। और इसी के आगे चलते हुए नए दौर में एक आधुनिक संगीत शैली के चरण की शुरुआत हुई, जैसे कि चैती, बनारसी ठुमरी और कजरी वगैरह। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बनारस के एक मशहूर लोकगीत की झलक।
बनारस के गली कूचे हों, घाट हों या फिर गंगा का किनारा हो, देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का भरपूर आनंद उठाते हैं। एक आध्यात्मिक आकर्षण की छवि उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है। आइए अब चीन में हमारे दोस्तों की बनारस के बारे में क्या राय है, उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। 瓦拉纳西我去过很多次了，每当我想起在恒河泛舟清晨迎接第一缕曙光，然后坐着人力三轮到最狭窄的巷子里去寻找千百年留下的印记，到了晚上的恒河火炬驱散朦胧的夜色，每每这时我的耳边就会不停地回响着古老的梵音。自从我学习了印度古典舞蹈之后，我就深深地爱上了这里的音乐和舞蹈文化艺术。因为它悠久的历史、它的丰富以及它的特色和魅力，都值得用一生的精力去学习、探索。我觉得在接触印度音乐的时候，就感觉它像是有某种力量注入到了我的身体，每次聆听都会感觉非常贴近自己的内心。我曾经去过印度很多的城市，很多的地方，我觉得那里的音乐还有那里的舞蹈给我留下了一个非常深刻的印象。作为舞者，我们跟印度古典音乐有着难舍难分的关系。作为我个人来讲呢，首先我非常喜欢印度古典音乐的拉格，因为它有一种非常特别的味道，特别层次特别的丰富，而且就是有一种余音绕梁的感觉。也曾经去过瓦拉纳西，感受到了那里每天早晨被音乐唤醒，从梦中唤醒的感觉，以及晚上它在恒河边上的这个祭祀是特别神圣，也是和音乐密切相关的。我们谈一谈关于瓦拉纳西及其音乐遗产的纪录片的制作过程吧，来谈一谈文化艺术是如何增进不同文化间的相互发展和友谊。制作这部纪录片其实并不容易。因为我们必须在新冠肺炎疫情期间邀请到所有的艺术家聚集在一起，他们呢必须严格遵守当地的防疫要求，来到恒河上的一条船上准备他们的艺术表演。这些艺术家呢本来是应该在2020年来我们中国巡演的，但是由于新冠疫情的大流行，他们没有能够成行。因此呢，我们想把这些音乐带到网上，也向瓦拉纳西这座神奇的城市致敬。这次在恒河上的拍摄音乐，这个过程本身就是一个非常艰巨的任务，因为要安排一艘船，搭建舞台，晚上还要让艺术家们面对非常恶劣的天气，这一切都使我们的拍摄工作非常的困难。后来呢，我们不得不将艺术家们邀请到一个室内的景点进行拍摄演出。这里呢，这个室内的景点也是来自一个瓦拉纳西的传奇音乐家他自己的家里。ये बनारस का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मेरे ख्याल से 400-500 साल से संगीत, साहित्य, अध्यात्म इन सब का गढ़ रहा है। इसको कबीर चौरा इसलिए कहते हैं क्योंकि कबीर दास जी को यहीं से प्रेरणा मिली और यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। तो कुछ खास है इन गलियों में, इस आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बहुत आर्टिफिशियल, कुछ सुपरफिशियल, कुछ ऐसा नहीं है जो कि फेक हो। बहुत ही मिट्टी से जुड़ी जगह है और पूरा बचपन मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो भी कलाकार हैं बनारस के, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आधा से 1 किलोमीटर का रेडियस है ये कबीर चौरा मोहल्ले का, और उसमें मेरे ख्याल से आपको कम से कम नहीं करके 4 से 6 पद्म विभूषण मिल जाएंगे, 2-4 पद्म भूषण मिलेंगे, पद्मश्री तो बहुत सारे हैं, 12-15 आपको पद्मश्री मिल जाएंगे। तो बनारस एक तो ऐसा शहर है जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब भी हुए, कबीर दास तो हैं ही, वो तो सबसे पुराने हैं, पंडित किशन महाराज जी हुए, पंडित शामता प्रसाद जी हुए,
गिरजा देवी जी, सितारा देवी जी, ये सिर्फ संगीत की बात कर रहा हूँ। साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, एक से बढ़ के एक पोएट लोग हुए हैं। तो कुछ बात है इस मोहल्ले में, इस लोकेलिटी में, कि यहाँ की शांति में, यहाँ की मिट्टी में कि लोगों को प्रेरणा मिलती थी यहाँ रियाज करने की, साधना करने की। The world is divided by languages, but culture, art, particularly music and dance, in one sense you can say that they have no language, but I would prefer to put it that they go beyond language. Music, dance, theatre, any art form, it transcends language, and therefore it's one of the most enduring instruments of bringing people closer together. Our original idea was to bring music and artists from the city of Benares touring China as part of the World Music Festival. Well, it didn't work out because of the pandemic. We at Chaiti continue to make efforts to bring various art forms and artists into China. And therefore this time we thought of bringing it to you through a larger platform, online platform that has a reach to millions of people. We hope you will like this effort, appreciate our hard work, and will continue to support Chaiti. यूं तो बनारस के इतिहास और संगीत के किस्सों को एक ही कार्यक्रम में नहीं समेटा जा सकता। आज के इस कार्यक्रम की ये भी खासियत है कि हमारे कलाकारों ने सिर्फ गंगा के किनारे से ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी के प्रांगण से आपको मधुर धुनें सुनाई। आज की आखिरी प्रस्तुति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। हमारी आज की जो ये संगीत की संध्या है, हमारे शास्त्रीय संगीत की ये परंपरा है कि राग भैरवी से हम लोग अपने कार्यक्रम का अंत करते हैं। और भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें सुबह का एक प्रातःकालीन एक फ्लेवर है, एक रस है, और वैसे हर समय गाया बजाया जाता है, लेकिन इसको सबसे अंत में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें 12 सुर का प्रयोग है। और इसकी खूबसूरती बनारस में किस लहजे से देखी गई है, वैसे गाया बजाया पूरे दुनिया में जाता है। और बनारस में इसको बजाने का और देखने का क्या अंदाज़ है, क्या मिजाज है, उसको हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसके बाद ये हमारा आखिरी पीस होगा। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ चैती आर्ट्स एंड फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें ये इस मुश्किल मौके में भी मौका दिया आप सबसे जुड़ने का। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पंडित नरेंद्र मिश्रा जी सितार पे, उस्ताद फ़तेह अली खां साहब शहनाई पे, और प्यारे लाल जी दुक्कड़ पे जो यहाँ पे हैं, और तबले पे मेरी आप लोगों ने हाज़िरी, मैं शुभ महाराज, मेरी हाज़िरी आप लोगों ने ली। तानपुरे पे प्रियंका महाराज जी हैं। आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ये जो दिन है ये जल्दी ख़त्म हो और उसके बाद हम लोग वापस से पहले की तरह मिलें और इसी अंदाज़ का, इसी मिजाज का गाना बजाना हो और सामने से एक दूसरे को मिल के संगीत का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति का एक अनोखा और मनमोहक संगम दिखाई देता है इस पावन शहर बनारस में। या फिर यूं कहिए, तुलसी की चौपाई बनारस, बिस्मिल्लाह की शहनाई बनारस, संस्कृति का सम्मान बनारस, संगीत की पहचान बनारस, महाशिवरात्रि का प्रसाद बनारस, मोक्ष का द्वार बनारस, तुम्हारा दिल बनारस, मेरी रूह बनारस, शहरों में खास शहर बनारस। जनाब, ये शहर नहीं है एहसास बनारस।